بلیٹن میں خوش آمدید۔ سخت سے سخت مسئلہ لے کر آئیں، بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دے دی۔ مسائل حل کا طریقہ مشاورت ہے۔ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں شناختی کارڈ دے کر بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئیں مسائل پر بات کریں۔ وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت۔ ڈائیلاگ کا مقصد سرکاری بات نہیں کرنی، آپ کی اور عوام کی بات سننی۔ مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا دی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ بندوق کی نوک پر شناختی کارڈ نکال کر لوگوں کو بے دردی سے شہید کرے۔ جو کچھ ہو گیا۔ آج بھی ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر گرینڈ ڈائیلاگ کریں، سخت سے سخت مسئلہ اس کو لے کے آئیں مہذب طریقے سے۔ مسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے، مگر سیکورٹی کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ فتنہ الخوارج دشمن ممالک وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردوں کے ساتھ دن رات نبرداز وہاں ہے۔ جس سڑک کو آپ خونی سڑک کہتے ہیں، کراچی سے لے کر چمن تک خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا۔ لیکن اگر اس سڑک کو بنانے میں جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں تو یہ سڑک نہیں بن سکتی۔ کس کا فائدہ؟ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان غیر ملکی پراکسیاں ہیں جو بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا بلوچستان کی تقدیر بلوچ عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنانے کا عزم۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان غیر ملکی پراکسیاں ہیں جو بلوچستان کی ترقی روکنے اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے اجتماعی عزم اور غیر متزلزل رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب اور بلوچستان کی حقیقی صلاحیت، ترقی اور عوامی امنگوں کو اجاگر کیا جائے۔ فیلڈ مارشل نے کہا بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں۔ نوجوانوں کو با اختیار بنانا اور مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سماجی رہنماؤں کے امن، سماجی ہم آہنگی اور مثبت قومی مکالمے کے فروغ میں کردار کو سراہا۔ بلوچستان کی اہم شخصیات اور شرکاء نے غیر ملکی اسپانسرڈ خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کیا۔ کہا سچ غالب آئے گا جبکہ دشمن قوتوں کا جھوٹا بیانیہ اپنے ہی پروپیگنڈے اور فریب میں دفن ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی PTI کا طبی معائنہ کرا دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی کو سیکیورٹی کی وجہ سے پیمز اسپتال لے جایا گیا، صحت مند قرار دینے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بانی PTI کو اسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو گزشتہ شب اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ قیدی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان طبی معائنے کے دوران موجود رہی۔ قیدی کو صبح تقریباً 5 بجے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کچھ دیر بعد مزید تفصیلات شیئر کی۔ بتایا طبی معائنہ پیمز میں کرایا گیا۔
जिसमें अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अता तारण ने पिम्स ले जाने की वजूहात भी बता दी। कहा पीटीआई कारकुनों की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नजर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लिखा, उनको पहले भी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाती रही हैं, अब भी जब जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हल्फन कहता हूं, बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में बयान दे दिया। कहा उन्हें ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं, लेकिन सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। इस उम्र में ब्लड प्रेशर का मसला आम बात है। ये भी कहा बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक बनाते थे। नहीं कहता ये बदला है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखें, आपने तो सियासत को ही गटर में डाल दिया। अल्फन कहता हूँ, इमरान खान साहब की सेहत को कोई मसला नहीं है। हुक्म था कि अस्पताल में जाया गया। मैं नाम भी ले सकता हूँ गजाती डॉक्टर जिसने ये बात बताई, और जिसको बताइए यहाँ हाउस में है वो। ब्लड प्रेशर की उन थोड़ी बहुत शिकायत है, उम्र के साथ हो जाती है। एक्सपीरियंसेस हैं जेल के, वो सुनाता नहीं है। मुझे जिना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था। हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है ये नहीं हो रहा। इनका उस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था। प्लेटलेट्स का एक इशू बनाया गया था उस जमाने के। इमरान खान साहब जो कहते रहे कि मैं जाके ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जेन्युइन बीमारियों का मजाक नवाज शरीफ का उड़ाएंगे। ये नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट है। आपने तो स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स के जो है वो गटर में डाल दिए। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को अस्पताल दाखिल किया गया, ना इलाज हुआ। हम जिद्दोजहद करेंगे, दोबारा अदालत जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बताया, कल पीटीआई अरकान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला ना मानकर उन्होंने हट धर्मी की। जो खुद को आईन और कानून से बाला समझते हैं, उन्हें कानून के कटहरे में लाना है। असद कैसर ने कहा, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, कल हमने अदालत जाना है। के लेटर में बड़ा कैटेगरी के लिए लिखा था कि उसको आप शिफ्ट कर ले, वो उसकी एक टीम बनेगी। उस टीम में डॉक्टर रुज़मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब उसके मेंबर होंगे, उनके टेस्ट होंगे और फिर उसका इलाज होगा। दोनों चीजें नहीं हुई है, ना उस हॉस्पिटल में लेके गए। हम पॉलिटिकल पार्टी, हम स्ट्रगल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा जाएंगे। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जा रहे हैं। जो इन्होंने हठधर्मी की है और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आईन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है। कल तो हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम कंटेम्प्ट में जाएंगे और वहाँ केस दाखिल करेंगे, और इसके अलावा जो 27 का हमारा तहरीक है इसके ऊपर पूरी तवज्जो रखेंगे। शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि बानी को वहां ले जाया जाता। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की ARY से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही। बानी के अस्पताल मुंतकिली मामूल का फैसला था, कोई तब्दीली नहीं आ रही। हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई को मंजन बेचने दें। शिफा हॉस्पिटल के बाहर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, उसको तानियात किया गया था कि वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को फुल प्रूफ बनाया जाए। शिफा के बाहर जो सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं थी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे खान साहब को लाया जाता। इसलिए वो डॉक्टर्स जो कि शिफा के थे वो पिम्स हॉस्पिटल आ गए। इमरान खान साहब का वहाँ पे मुआयना हुआ। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर उसको इंश्योर नहीं किया जा पा रहा था और दूसरे अस्पताल में वही फैसिलिटी, वही डॉक्टर्स, वही टीम भेजी गई, उनका मुआयना हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं समझता हूँ कि उससे रूगर्दानी नहीं है। नहीं, हुकूमत के खिलाफ कहीं न कहीं कोई आपके कुछ लोगों ने भी कहा कोई साजिश हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं? ये एक मामूल का फैसला। पीटीआई के लोग तो बड़े खुश हो रहे थे कि शायद कुछ तब्दीली आ रही है। इस तरह के फैसलों से न कोई तब्दीली आती है न आ रही है। बाकी जाहिर है उन्हें भी अपना सियासत करनी है, मंजन बेचना है। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी अपील दायर कर दी गई। जराये के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके दायर की गई। इस्तदा की गई है, बानी की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर करके 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 49 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सीज का सफाया किया।
खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान और अक्सई खैबर अजला में कार्रवाइयों के दौरान असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। बलोचिस्तान के अजला, मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर में 37 दहशतगर्द मारे गए। 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हथियार, धमाका खेज मवाद और रिमोट कंट्रोल आलात कब्जे में लिए गए। ISPR का कहना है सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शेबानी ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। शाम के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और दिफा और सलामती के शोबों में रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। जमहूरिया कांगो के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस की सरबराही में दिफाई वफ्द का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वफ्द को मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस ने नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल से भी मुलाकात की। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल इस्तेदाद की तारीफ की। खित्ते के अमन के लिए पाक फौज के अज़्म और दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी, मकामी पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।